we will do numericals on torque and you can say potential energy on a dipole for dipole. Okay, you know both the formulae for calculating torque and potential energy. Tau is equal to PE sine theta. Okay, for calculating torque and potential energy. What will be the formula for calculating potential energy? Yes, general formula you have to take in this situation minus PE cos theta 2 minus cos theta 1. Okay, so there are two formulas on which you have to do an numerical. Now first problem is two charges of 1000 microcoulomb plus minus, two charges, one of plus and another of minus, are separated by distance is given in between them is 2 mm, 2 millimeter. The dipole so formed is held at an angle of 30 degrees with a uniform electric field. Of value is given here 15 into 10 raised to the power 4 and the unit for electric field is Newton Coulomb inverse or Newton per Coulomb you can write. Calculate the torque acting on the dipole. Okay, this is numerical in front of you. You have to solve. What is given here? These are the values of Q charge. This is the angle of 30 degree and one of the important point is here. What is this? 30 degree angle theta is given with the uniform electric field. You have to note this point is also with the uniform electric because theta is the angle of dipole with the uniform electric field, तो theta given है. Okay, अगर वो इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल ना देता तो हमें कुछ प्लस माइनस करना पड़ सकता था. तो ये चीज जरूर देखेंगे आप कि वो किसके साथ डाइपोल किसके साथ एंगल बना रहा है, वही एंगल लेना है. आएगी कुछ प्रॉब्लम, देखना इस चीज में आएगी आने वाले टाइम में कि हम थीटा 30 की बजाय 90 माइनस 30 60 करके लेंगे, तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ नहीं होगा. ठीक है, ओके, तब देखेंगे. चलो, नाउ दिस वैल्यू इज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. This is E, this is Q, this is theta. Okay, and you have to calculate dipole torque on dipole means tau you have to calculate. तो mark in this way. जब भी कोई आप पे क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन में ही आप इस तरह से मार्क कर दो, अंडरलाइन किया, वैल्यूज को ऐसे कर दिया फटाफट, so that you can save your time of solve. फटाफट से वैल्यू आइडेंटिफाई की न्यूमेरिकल में और उसके बाद सॉल्यूशन करने बैठे. सॉल्यूशन करना है, कैसे करेंगे? फार्मूला, यू हैव टू फाइंड आउट टॉर्क
and you have the formula PE sin theta. No doubt is here. Now solve it. What is the value of P? You know very well. P is dipole moment and its formula is Q into 2A. Here E sin theta. Now torque is equal to, what is the value of Q? Either charge. Magnitude you have to take in this situation. What is the value of Q? 1000 microcoulomb. This is 1000 microcoulomb. Okay. What is the separation in between these charges? 2 mm. 2 mm. Millimeter. What is the value of E? E की वैल्यू क्या है? 15 into 10 raised to the power 4. Now sine 30 degrees. Okay. All the value you have to put here in this formula from this numerical. Now torque is equal to, solve it. 1000 10 raised to the power 3. You can write in this way. 1000 microcoulomb. Micro क्या होता है? 10 raised to the power minus 6. Okay. So coulomb into 2 mm. 2 into, what is the meaning of milli? 10 raised to the power minus 3 meter into 15 into 10 raised to the power 4 Newton. Coulomb inverse is there. And what is the value of sine 30? 1 upon 2. 1 upon 2. Now solve it. 2 से 2 गया. 10 raised to the power 10 पावर का आप क्या करोगे? सोल्व करोगे उसको. 10 raised to the power plus 3 minus 6 plus 3 minus 6. 10 raised to the power minus 3 10 raised to the power plus 4. ये भी हो गया. इसके बाद बचा क्या हमारे पास? ओनली 15. 2 से 2 चला गया. तो फ्रॉम हेयर torque is equal to 10 raised to the power minus 3 plus 3 cancel, minus 6 plus 4 कितना बचा? 10 raised to the power minus 2 into 50. 10 raised to the power minus 2 into 15. टॉर्क है. यूनिट क्या होंगे? न्यूटन मीटर. ओके. तो दिस इज द आंसर इन दिस केस. ओके. तो इन चीजों का ध्यान रखना. जो भी आपके सफिक्स लगे हुए हैं यूनिट से पहले, इनका ध्यान रखना आपको. जो ये एंगल थीटा है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर एंगल होगा तो ही आपको थीटा लेना है. अदरवाइज 90 माइनस थीटा लेना पड़ सकता है. आएंगी सिचुएशन. डोंट वरी अबाउट दैट. जब आएंगी तब देखेंगे इनको. ठीक है. नेक्स्ट नोट कर लीजिए. After this, numerical on potential energy for an dipole. डाइपोल के केस में पोटेंशियल एनर्जी को कैसे निकालो? नोट करिए न्यूमेरिकल. A dipole consists of an electron. A dipole consists of an electron and a proton separated by a distance of 5 into 10 raised to the power minus 9 meter. Simple value is there. No prefix is there.
Direct, you have to use this value. The dipole is aligned dipole रखा गया है in a uniform electric field. ये तो बात से पता ही है आपको, जब पोटेंशियल एनर्जी फॉर डाइपोल निकालोगे तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ही होगा, ठीक है, उसी के लिए तो कर रहे हैं सब कुछ. ऑफ 1.44 into 10 raised to the power 4 and unit of electric field is Newton per coulomb. Okay, calculate potential energy of dipole. Calculate potential energy of dipole. Calculate potential energy of dipole to hold it at, ये भी बताना है ना अब, to hold it at 60 degree angle with the direction of electric field. With the direction of electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री एंगल पर अगर आप उसको रखते हो तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी. और डाइपोल कैसा है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन और दूसरी तरफ प्रोटॉन. ओके, चलो डायग्राम बना दो पहले. चलो डायग्राम से सीखेंगे. ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड. थोड़ा सा डायग्राम का यूज कर लेते हैं. हालांकि न्यूमेरिकल में कईयों में डायग्राम नहीं दे रखा होता है, इसमें भी नहीं है. ओके, चलो आपको पता है अगर कोई डाइपोल है, दिस साइड इज, यू नो, दिस साइड, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस साइड इज पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव साइड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में. ये कौन सी साइड होती है, पॉजिटिव. एंड दिस वन इज नेगेटिव. ओके, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड. चलो अब बनाना है एक डाइपोल. डाइपोल बनाते हैं. ये बना दिया डाइपोल. ये चार्ज कैसा ले लिया, सपोज पॉजिटिव, और ये कैसा ले लिया, सपोज नेगेटिव. ये नेगेटिव ले लिया, ये पॉजिटिव. इनका सेपरेशन कितना गिवन है, सेपरेशन इज गिवन, यहां से आ जाइए, डिस्टेंस separated by a distance, this one, this is the value of 2a. Okay, 5 into 10 raised to the power -9 मीटर. लेकिन ये कितना एंगल बना रहा है इसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये देखिए 0 डिग्री एंगल. अगर मैं इसको इस तरह से रोटेट करूंगा तो क्या होगा, मेरे को फोर्स लगानी पड़ेगी, बिकॉज दिस नेगेटिव अट्रैक्ट दिस पॉजिटिव वन. ओके, ये प्रोटॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये तो इसको ऑब्वियस है खींच कर रखेगा, अट्रैक्ट करेगा, चार्ज की प्रॉपर्टी है. लेकिन अगर आपने इसको रोटेट करा है, ये पोजीशन दे दी इसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना बन गया, 60 डिग्री. तो ये केस आप छोड़ दीजिए. आपने अगर इस तरह का एफर्ट कर दिया कि इसको आपने रोटेट कर दिया, और ठीक है, अब फाइनली आपने ऐसे कर दिया. नाउ दिस एंगल ऑफ डाइपोल इज 60 डिग्री with the electric field. Now the theta is 60. तो इधर जो आपने वर्क डन करा है इसको रोटेट कराने में, एंटी क्लॉकवाइज आपने रोटेट करा 60 डिग्री एंगल से, तो आपका यही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो चुका है, पोटेंशियल एनर्जी. और यही आपको कैलकुलेट करना है. और आपको जो वैल्यू गिवन है वो है
इन दोनों के बीच की जो वैल्यू गिवन है, ये डाइपोल की जो लेंथ है, इसकी जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है? 2a की वैल्यू 5 × 10⁻⁻⁻10 मीटर। चार्ज की वैल्यू उसने गिवन नहीं है, क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इनकी जो चार्ज की वैल्यू होती है, यू नो वेरी वेल, 1 इलेक्ट्रॉन हो या 1 प्रोटॉन हो, उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? यस, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस, प्रोटॉन के लिए प्लस। दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। तो क्यू गिवन है, 2a गिवन है, थीटा गिवन है, ओके, ये सारी वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है। तो करें सोल्व, चलो सॉल्यूशन ले लेते हैं। सिचुएशन समझ में आ गई है, कंडीशन समझ में आ गई है डायग्राम से। अगर आप इसको ऐसे रोटेट करोगे तो क्या होगा? वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में होगा। एंड पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है? व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी? -PE cos θ2 minus cos θ1. Okay, now put all these value from there or and there. You can take value को put करिए, कैसे? PE instead of PE you have to put Q into 2a E cos θ2 minus cos θ1। एक एक स्टेप समझना बेटा ध्यान से, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल स्किल अपनी डेवलप कर लोगे तो आगे आपको फिजिक्स सोल्व करने में आसानी है। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू? क्यू की वैल्यू क्या है? -1 माइनस तो ये है 1.6, क्योंकि हमें प्लस माइनस नहीं लेना क्यू का, ये तो ऑलरेडी फार्मूले में है, तो हम ले रहे हैं 1.6 × 10⁻⁻19। यूनिट में नहीं लगा रहा हूँ बिकॉज सारी एमकेएस सिस्टम में है, तो बीच में कॉम्प्लेक्स हो जाता है सारा सिस्टम, इसलिए नहीं लगा रहा हूँ। 5 × 10⁻⁹ मीटर है, छोड़ दो उसको, इंटू 1.44 10⁻⁴ न्यूटन पर कूल, न्यूटन पर कूल। चलो अब बात आ जाती है cos θ2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ θ2? θ2 क्या है? फाइनल, फाइनली वो कहां पर है? फाइनली वो कहां पर है? एंगल 60 डिग्री पर। और कहां से उसको आपने कहां से उठाया था? 0 डिग्री से ही उठाया था, तो 0, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हो गई सभी वैल्यू। नाउ सोल्व, सोल्व करिए। कैसे करेंगे सोल्व? करिए फटाफट से, आप करिए, देखते हैं कौन सोल्व करता है, फिर चेक करेंगे कि क्या हमारा आंसर ठीक है। सोल्व करते हैं। 16 5 80 पॉइंट है, तो 8.0 आ गया, ये दोनों खत्म, ठीक है। 10⁻⁻19 -9, और ये कितना हो गया टोटल? 28, 4 माइनस हुए 10⁻⁻24 इंटू क्या है? 1.44 अभी बच गया हमारा। चलो ब्रैकेट के अंदर चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60? 1/2। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0 डिग्री? 1। ओके, चलो इजी हो गया अब तो। 1.44 को मल्टीप्लाई करिए अब 8 से। 1.44 8 से 144 कितना होगा? 8 4 32, 3 आ गया, 8 4 32 एंड 3 35, 3 8 1 8 and 3 11 11.5 दो है ना डिजिट, 11.5 इंटू 1/2 माइनस 1/2, नेगेटिव साइन के साथ चल रही है, ये भी क्या हो जाएगा? हाफ में से बन गया -1/2 इंटू 10⁻⁻⁹
-24. ओके, माइनस माइनस प्लस 2 से इसको कट करिए, you will get 5.76 into 10 raised to the power -24. This is potential energy. Any kind of energy is you have, then you can write the unit joule. ये जितने भी यूनिट आप लगा रहे थे, अगर आप उसको सोल्व करके देखोगे तो लास्ट में जूल ही आएगा. दिस इज योर नाउ फाइनल आंसर. नोट इट, नोट करिए. इसके बाद कुछ डेफिनेशन और कोई ज्यादा लंबे टॉपिक नहीं है, इजी कंसेप्ट से ही समझेंगे इनको. ये कुछ आर्टिकल ऐसे है जिसको ज्यादा डिटेल में पढ़ना ठीक नहीं. चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसके बारे में पढ़ते हैं. फ्लक्स भी आएगा, बहुत जल्दी आएगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से. नोट करिए डेफिनेशन, थोड़ा बहुत बताएंगे इसके बारे में साथ के साथ. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सारा फोकस इस चीज पर रखना कि किस तरह से बोर्ड के क्वेश्चंस आते हैं और उनको सोल्व करना है. तो थोड़ा बहुत फार्मूला डेफिनेशन कुछ तो पता होना चाहिए ना. तो ये कोई ज्यादा लंबे टॉपिक नहीं है. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, सबसे पहले आप डिफरेंस के बारे में पढ़ना है, तभी पोटेंशियल के बारे में पढ़ना थोड़ा सा डिफरेंस ठीक हो जाता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इसकी स्टेटमेंट? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. नंबर 1, ये 2 पॉइंट्स के बीच में हो, सपोज B एंड A. 2 पॉइंट आपने कौन से चूज कर लिए? सपोज B एंड A. इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, शॉर्ट में लिख रहा हूं EF, एज द, यहां से डेफिनेशन स्टार्ट हो जाती है, एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन. 10th क्लास में ये बताया था, ये एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. वैल्यू क्या होती है इसकी? +1 कूलम. यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टेस्ट करने के लिए रखा जाता है. फार्मूले पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, बिकॉज इट्स वैल्यू इज 1. is the amount of work done in carrying a unit positive test charge without acceleration from A to B. Without acceleration from A to B. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में? B और A के बीच में. फाइनल माइनस इनिशियल होता है, लेकिन जाएगा कैसे वो? A से B. अभी समझाते हैं इस चीज. A to B against the electrostatic force of the field. साथ में लिख लो, against electric field. शॉर्ट में लिख लो, against electrostatic field. ओके, जिसके अंदर वो चल रहा है. along any path between the 2 points. साथ में ये पॉइंट भी देखिए, along any path, मतलब पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ता. along any path between, उन्हीं पॉइंट के बीच
between the two points. चलो सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ये रहा पॉइंट ए, ओके। इस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दो आप प्लस क्यू नोट, आपको पता है इसकी वैल्यू क्या लेंगे आप, +1 कूलम, माइंड सेट कर दो। आपने इसको उठाकर लेकर आना है, ले आए कहां पर, बी पॉइंट पर, किसको, टेस्ट चार्ज को, ठीक है। लेकिन जब आप इसको लेकर आओगे तो एक तो इसका विदाउट एक्सलेरेशन, यानी कि स्पीड इसकी एक जैसी होनी चाहिए, ये नहीं स्पीड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, नो, विदाउट एक्सलेरेशन आना चाहिए। चलो आ गया। लेकिन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं यार, उसके अगेंस्ट आना है। अगेंस्ट में क्या करोगे आप, इसी की डायरेक्शन में कोई सोर्स चार्ज रखिए, क्या रखिए, सोर्स चार्ज। सपोज ये मैंने सोर्स चार्ज रख दिया, पॉजिटिव इन नेचर, पॉजिटिव क्यों लिया अभी बताता हूं इसको, प्लस क्यू चार्ज पे। ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, नॉर्मली रिलीज करेगा स्फेरिकल शेप में चारों तरफ। मैंने बताया था ये पहले भी आपको, नॉर्मली निकलेंगी सभी 90 डिग्री। तो जहां से चार्ज आ रहा है वो भी इसकी लाइन में होगा, देखो अगेंस्ट हो गया ना, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है, लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव है, तो ये बिल्कुल इससे क्या हो गया, अगेंस्ट हो गया। तो जब आप इसको ए से बी पॉइंट पर लेकर आओगे तो यहाँ पर वर्क डन भी होगा, यहाँ पर पोटेंशियल भी बनेगा, यहाँ पर फोर्स भी लगेगी, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर अराइज होंगी। और अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल के बारे में। किसके बारे में, पोटेंशियल के बारे में। तो दूसरी बात, जैसे जैसे ये चार्ज यहाँ से यहाँ पर आता जाएगा, इसका पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ से यहाँ पर चेंज होती चली जाएगी। जितना ज्यादा दूर होगा कम होगी, जितना ज्यादा पास होगा ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये सोर्स चार्ज से ही देखा जाएगा, इससे देखा जाएगा। मैं अभी बता देता हूँ इसका फार्मूला क्या रहने वाला है आपके पास, ड्राइव करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, और आर क्या होगा, कैपिटल क्यू से कितना डिस्टेंस है इस चार्ज। तो अगर ये आर की वैल्यू देखो इसके लिए ज्यादा है, ए पॉइंट के लिए, तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। आर की वैल्यू जैसे जैसे कम होती जाएगी, मतलब वो जो टेस्ट चार्ज है आपका, जितना ज्यादा क्लोज आता चला जाएगा सोर्स चार्ज के, उतना ज्यादा पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। यस और नो? तो नोट करिए इस चीज को, समझिए इस चीज, आई होप आपको। और हाँ, दूसरी बात, आप ये सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इस पॉइंट को कवर करते हैं अब अलोंग एनी पाथ। बाकी सब तो हो गया ना, ये सारे पॉइंट कवर, वर्क डन भी है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, विदाउट एक्सलेरेशन हो गया, ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कवर कर दिया, बचा ये एनी पाथ। एनी पाथ का मतलब क्या है, अगर आप ए पॉइंट को इसकी लाइन में भी ना लेकर आओ, सपोज आपने कहा सर मैं तो ऐसे जाऊं बी पर घूम फिर कर, दूसरा कहता है सर मैं तो ऐसे जाऊंगा, जाइए जैसे मर्जी जाइए आप, लेकिन ए से बी पहले डिस्टेंस कितना था और बाद में कितना डिस्टेंस था। तो यहाँ पर ये क्लियर कर देता हूं मैं आपको, डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलो, पाथ के ऊपर फॉलो नहीं करेगा, इस चीज का मतलब ये, नोट करिए। ये कोई सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जा ही रहा है, जैसे मर्जी आए कोई चार्ज इसके फील्ड में, ठीक है। कहां तक जा रही है ये फील्ड लाइन, यू नो वेरी वेल, इंफिनिटी तक। वहां पर आपने क्या कर लिया, फिर दोबारा से टेस्ट चार्ज ले लिया कोई, लेकिन ये कहां पर है इस वक्त, एट इंफिनिटी। वहां से उठाकर लेकर आ रहे हो आप, जैसे मर्जी ले आओ, फिर दोबारा से जैसे मर्जी ले आओ। अब कोई आपने पॉइंट चूज कर लिया, 2 पॉइंट नहीं होंगे इसमें, सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, एक।
तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना मिनिमम वर्क डन कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, मिनिमम वर्क, इस टेस्ट चार्ज को उठाकर लाए वो आप अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सलरेशन, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। चलो अब आ जाते हैं फार्मूले पे। इसको डिनोट किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस हो या पोटेंशियल हो, V से डिनोट करेंगे। जनरल फार्मूला इसका W/Q, लेकिन सही समझने के लिए फार्मूला क्या है, V को पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में अगर आपको चाहिए तो आप लिखेंगे V को VB माइनस VA, यानी कि दो पोटेंशियल का डिफरेंस इसके अंदर इंक्लूड है। ओके, उसके बाद W क्या है, W क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट B माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट A। वर्क डन कैसे लोगे, पहले क्या किस सिचुएशन में था वो, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी देखो, फिर लेकर आए हो तो सेकंड वाले पे, सेकंड पॉइंट पे कितना है वो, और टेस्ट चार्ज Q, ये आपका वो चार्ज है जिसको आप लेकर आ रहे हैं। जरूरी नहीं 1 कूलम ही लेना है, टेस्ट चार्ज भी लेना है, कोई और वैल्यू भी हो सकती है, 2 कूलम 3 कूलम कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका फार्मूला रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। लेकिन अगर बात आ जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, नोट डिफरेंस, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर आया है, इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, तब आपका यही फार्मूला क्या बन जाएगा, VA, ए पॉइंट लिया ना आपने, VA W इन्फिनिटी B अपॉन Q, W इन्फिनिटी अपॉन Q, यहां पर लगा लीजिए UB माइनस U इन्फिनिटी, सॉरी UA, हम इन्फिनिटी से A पर आए, वो A से B पर था, A से B के लिए ये, इन्फिनिटी से A के लिए, अपॉन Q। इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या होगी, अगर चार्ज ये बहुत ज्यादा दूर होगा तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 0। क्या होगी, 0 पुट कर दो, या फिर इसको ऐसे लिख लो, बात एक ही है। यानी कि आपको सिर्फ एक ही पॉइंट का यहाँ पे A लिखना है, एक ही पॉइंट पर क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी, दूसरे की तो आपने क्या कर देनी है, 0 कर देनी। तो सिंपल, इसकी ज्यादा जरूरत तो नहीं पड़ती, इस फार्मूले को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये दो टॉपिक है आपके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं कल करवाए जाएंगे आपको, ठीक है। बोर्ड के कैसे आते हैं, न्यूमेरिकल से आप इसको ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, तो इनके न्यूमेरिकल आपको कल करवा दिए जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस